हम फिर से रेडी होके चल पड़े हैं टूरिस्टी स्टफ करने। हियर इज माय हबी, पूरा बीच रेडी। यप, हम निकल पड़े हैं नेचुरल रॉक ब्रिज फॉर्मेशन देखने एंड उसके बाद हम लक्ष्मणपुर बीच में सनसेट भी एंजॉय करेंगे एंड माय सनसेट वाइट शर्ट एंड उसके बाद स्टार गेजिंग भी हम उधर ही करेंगे एंड देन हेड बैक। So we have a lot of activities planned. हमारे भरतपुर बीच भी था बीच में, बट देन वी थॉट इट विल बी टू हेक्टिक। ऐसे भी वाटर एक्टिविटीज़ आर कॉमन देयर, सो वी थॉट वी ऑलरेडी हैड स्कूबा इन द मॉर्निंग एंड so we skipped that. We took some rest, we had a good lunch and had a good ice cream and then just heading back. Yes, these are faces of well rested people. Yes. हम आधा घंटा सोए, but that is also feeling like really refreshing. हमारा इधर पूरा actually it's more on power naps only because of the schedule. It's so different from our usual stuff. We are having to depend on power naps, but it's helping us. So we clicked some very amazing pictures at the Natural Rock Bridge, and after that there was actually a very nice small market, and I bought a bag from there for my sister. They even had this kind of bag which I am having. They had bought this from Goa for me, and ये टाइप का मैंने एक और लिया अभी मेरी बहन के लिए. After that we just hurried and reached our cab so that we could catch up with the sunset at the beach. Sunset हो गया है, but we are just enjoying the vibe. Sunset हुआ भी नहीं, ये मतलब हुआ कि भी नहीं वो भी नहीं पता because it's cloudy today. So the stargazing got cancelled because it's cloudy again today. पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं. This is fully like dark cloud. हमने already भरतपुर कैंसिल कर दिया था. लक्ष्मणपुर हमने अभी बस सनसेट के लिए आया एंड स्टार गेजिंग गया. तो नील इज़ प्रिटी मच डन फॉर अस. विल प्रोबेबली ट्राई टू सी इफ़ वी कैन मेक टाइम फॉर सम शॉपिंग. अदरवाइज वी माइट गो टू सम कैफे और जस्ट एंजॉय द लाइव किचन एट आवर रिसोर्ट्स. And we are having jhalmuri, a special Bengali style bhel. This is our spoon for today. तो आज सुबह हम नील आइलैंड से निकल गए. नाउ वी आर बैक टू पोर्ट ब्लेयर एंड द क्रूज वाज गुड बट नॉट सो गुड. और क्रूज़ में भाई मेरी हालत आज ख़राब हो गई. मतलब वॉमिट हुआ, इतना सी सिकनेस लग रहा था, and literally every second person around me was puking, so it was really difficult for me to not puke. So we are back to our hotel. ये हमारे बालकनी से एक मैंगो ट्री दिख रहा है, and we have a mango here, and here is our room. This beach is so pretty. The trees and the whole scenery is looking just too beautiful. We really had a blast over here. We clicked a lot of good pictures and Too picturesque. Literally like it's palm fringed in a circular like a shape and it's so awesome. We are loving it. yeah. तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे. We have called our driver. He will be here in the next 15 minutes. And then we are going to go for shopping.
So this is the next day and today we are going to Ross Island and North Bay Island. और इधर जाने ये जगह जाने के लिए क्रूज़ नहीं होता है, सो इट्स गोइंग टू बी स्पीड बोट फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर. तो लेट्स सी हाउ दैट गोज़. आई एम अ बिट स्केर्ड फॉर सी सिकनेस बट आई एम होपिंग कि कुछ ना हो बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी शॉर्ट राइड्स लाइक 15-20 minutes only. Every ride is going to be 15-20 minutes, so I think I should be okay. So right now we are waiting at the port area. तो हमारे गाइड ने हमें अभी बताया कि वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सब. एंड द थिंग इज़ कि वहाँ पे हमारे साथ गाइड नहीं रहेंगे, तो भी हमें खुद से घूमना है. तो वहाँ क्या क्या हम देख सकते हैं वो सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमको दी. और वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि भाई डॉल्फिन बोट राइड है एंड देन देयर इज़ ग्लास बॉटम बोट राइड एंड and then there is jet ski, sea walk, like Yes, snorkeling. Not just jet skis. There was also one new concept of like having a car that runs on the sea. So all these are new sports activities that have begun. We went for the dolphin boat ride. So the name so it's basically in the shape of a yacht, to be honest. So there is this ground floor which has a seating area of 30 people. They told that it's an imported glass, so vision that you get of the underwater is extremely clear. And also there's this first floor which is like an open yacht. You can just sit and have the fresh air. So there's also seating there. So it's a 40-minute ride. We found it to be the most interesting. We were looking for glass bottom boat rides, but then the glass bottom boats are basically normal glass, the kind of glasses we have at our homes, right? So the viewing area is small and also the quality is a bit like, because there are scratches and wear and tear, so it gets a bit bloody sometimes depending on the boat. There was also a semi-submarine similarly priced, but they suggested it's better to go for this one because submarine will be entirely closed 20-25 minutes. This one, if you are not feeling well, so you can just climb up and sit on the upper deck. dolphin boat ride is for like 3K per person. There is also an option for kayaking. वो शायद 1100 या 1200 per person था. तो अगर यहाँ पे कायाकिंग करेंगे तो इट्स लाइक कि दो साइड पे माउंटेन्स है और हम बीच में से जाएंगे एंड वहाँ पे पर्ल प्लांटेशन है. तो यू कैन सी कि वहाँ पे पर्ल प्लांटेशन कैसा है एंड इट्स इंटरेस्टिंग. बट हमें आज मेहनत करने का मन नहीं है. तो कायाक कर चुके हैं हम तो. Guys, for the first time in my life, I saw a touch me not plant in Andamans. Here it is. I'll just touch this. And it started closing because the sea is a bit wild today. Experience अंडमान के लोगों ने हमारे लिए स्पीड बोट की जगह थोड़ा एक बड़ा बोट का इंतज़ाम किया है और सब लोग उसी में जा रहे हैं. सो आई एम अ बिट हैप्पी कि भाई सी सिक का और प्रोबेबिलिटी कम हो गया. This is North Bay Island. यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की ऐसी दुकानें हैं कुछ कुछ. And there are some shops here for shopping also. If you want to shop anything. We are here. The dolphin boat ride and
There's a sofa where everyone can sit, and this is the glass that we were talking about. कोरल रीफ पहुंच गया है, इसलिए अभी यहाँ पे थोड़ा डीप है, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग थोड़ा अंदर जाते रहेंगे। और यहाँ पे एक ग्रीनिश टाइप का एक फ्लेवर कोरल्स के आपको एक फूल जैसा एक पैचेस दिख रहा होगा, ये जो मेरा नीचे है, ये इधर ग्रीनिश टाइप या स्काई ब्लू कलर्स का सिर्फ फ्लेवर कोरल्स। और यहाँ पे एक फिश है, देखिए द ब्लू विथ येलो वाटर द ब्लैक हेड, ब्लू विथ येलो वाटर द ब्लैक हेड। ये जो फिश होते हैं ना, आजकल के बच्चों लोग के कार्टून में आते हैं, द फाइंडिंग डोरी। तो नीचे जितना भी आप लोग ये सब स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, एकदम रॉक का जैसा बेस, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, एक्चुअली कोई रॉक्स वगैरह नहीं है, सब लाइव कोरल्स है। और ये जो गैप में आपका ये सब व्हाइट कलर आपको शाइन कर रहा है, ये पूरा सीबेड सैंड है, सी का बॉटम है, सीबेड सैंड। ये जो व्हाइट कलर आपको शाइनिंग कर रहा है, ब्रेक वाटर्स है, ये जो लंबे लंबे वॉल के जैसा दिख रहा है। ये अभी हमारा बोट आ रहा है, हमारा घूमना फिरना हो गया यहाँ पे नॉर्थ बे आइलैंड में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत कुछ वाटर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं यहाँ पे, एंड वी आर ऑल रेडी टू लीव। सो वी हैव एंटर्ड रॉस आइलैंड. This is the Japanese bunker, and here all plastic items like carry bags and all are not allowed because we have these babies here. Look at these deers. They're so cute. Hello, dear. Hello, dear. Deb is enjoying. Hello, dear. Hello. Hey, no, dear, no. Okay, খেতে দাও না। আর ছেড়ে দাও। रिमूव। मैंने अपना मिंट खा लिया है और हमने यहाँ पे गाइड बुक किया है। इज टेकिंग 100 रुपीज़ पर पर्सन और पूरा घुमा देंगे। वी आर इन दिस गोल्फ कार्ट और हम उल्टा बैठे हैं। तो देव बोल रहा है कि उल्टा बैठ के भी मोशन सिकनेस होता है। बोला भाई क्या ब्रिटिश टाइम में राशन दुकान। अच्छा, ये राशन दुकान है। अच्छा, तो दिस इज प्रिंटिंग प्रेस पावर हाउस। क्लब हाउस, डांस क्लब। चर्च है ये, 1863 में बनाया हुआ चर्च। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये सब तोड़ दिया था बॉम्ब फेंक। Forest department. It's impossible. I'm on the left or right, that's
अब हम रॉस आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं। I forgot to mention that the dolphin boat ride was not so good for me. मतलब स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था, हम उधर पहुंच गए थोड़ा सा डीप सी में। उसके बाद वहाँ पे सब वो बता रहे, दे वर एक्चुअली एक्सप्लेनिंग रियली वेल कि भाई कौन सा कोरल क्या है, कौन सा फ़िश है, टाइगर फ़िश, स्टार फिश। दे वर इवन हेल्पिंग अस स्पॉट डिफरेंट फिशेस एंड द वे दे वर एक्सप्लेनिंग वॉज टू गुड। बट मुझे वहाँ पे वो ग्लास में देखते देखते थोड़ा चक्कर आने लग गए एंड दैट वाज द एंड फॉर मी। मैं तो वहाँ से निकल के फिर ऊपर जाके बैठ गई। ऊपर ओपन एरिया है। आई वाज सिटिंग देयर एंड आई टोल्ड देव कि तुम पूरा देख लो, मैं उधर जाके बैठ रही हूँ। वी डिड नॉट एक्चुअली हैव मच टाइम एट नॉर्थ बे आइलैंड बिकॉज़ हमें बोट भैया ने सिर्फ 2 आवर्स दिए थे वहाँ पे। तो हमने सोचा अभी ये डॉल्फिन बोट राइड में हमारे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स चले गए एंड देन उसके बाद मेरे को इतना चक्कर वगैरह आ रहा था, तो फिर तो मैं उतर के फिर हम बैठ गए एक जगह पे। हमने नारियल पानी पिया, कुकुम्बर खाया और मैंगो खाया। मैंगो वाज रियली नाइस। तो ये सब कुछ खा पीने के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। आफ्टर दैट हमारी बोट आ गई, फिर हम वापस चढ़ गए उसमें। द बोट वॉज देयर लिटरली फॉर 45 मिनट्स और हम स्टार्टिंग में ही चढ़ गए थे। बट दे वर एक्चुअली वेटिंग फॉर एवरी सिंगल पर्सन टू कम बैक बिकॉज मैंने बोला था ना कि हम सब बहुत सारे लोग एक ही बोट में जा रहे, तो वी हैव टू वेट फॉर एवरी वन टू कम बैक। वी कैन नॉट लीव बिहाइंड एनी वन। सो वी वर वेटिंग देयर फॉर 45 मिनट्स and after that we came to Ross Island. Ross Island was also nice. As soon as we entered we saw some deers and we saw some peahens. और वहाँ पे हमने एक गाइड ले लिया था। एक्चुअली गाइड लेना इज़ बेटर बिकॉज़ वहाँ पे हमारा बोट सिर्फ 1 आवर के लिए था और उधर बहुत ऊपर तक जाने के लिए वॉकिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता। तो फिर हमने गाइड लिया और गोल्फ कार्ट पे बैठे। बेटर इफ़ यू आर ऑन अ लिमिटेड टाइम, मतलब अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ ruins and old buildings to explore and like just soak in the entire thing. But just that if you are short on time, if you have close to around 45 minutes to an hour, so it's best to go with them. Else if you have like 3-4 hours with you, because it's open from 9 to 4, so it's best to then explore on your own. It will take around 2 to 3 hours to properly explore the entire island. फिर वापस हमारा टाइम था जाने का at 3:45 but few people still couldn't make it on time because वो जो कार था जिसमें हम ऊपर गए थे उसका शायद चार्ज या बैटरी कुछ ख़त्म हो गया and they couldn't come down. तो उसके वजह से भी वर वेटिंग देयर बट इट इज़ अ लाइक वैलिड रीज़न। बट पीपल गॉट सो हाइपर, सबका दिमाग सनक गया था कि भाई कितने देर रुकना है। इट वाज लाइक 1 आवर सिटिंग इन अ बोट, तो थोड़ा बहुत हो जाता है बट वी हैव टू बी पेशेंट इनफ फॉर एवरी वन टू कम बैक। वी कैन नॉट लीव एनी वन ऑन द आइलैंड। सो आफ्टर दैट आई वॉज थिंकिंग कि अगर हम नॉर्थ बे आइलैंड नहीं जाते तो भी चलता, क्योंकि वहाँ पर इतना कुछ हमने किया ही नहीं। उधर एक्चुअली वाटर एक्टिविटीज़ थे पर हमने स्कूबा ऑलरेडी कर लिया, हमने कायाकिंग ऑलरेडी कर लिया और ये बोट राइड हमने किया बस। देयर वाज अ लाइट हाउस ओवर देयर बट उसके लिए बहुत अलग ही रास्ता और टाइम चाहिए, तो अगेन वी डिड नॉट हैव दैट इन आवर हैंड। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वी कुड हैव मिस्ड इट। And right now we have come back to our favorite cafe which we found yesterday. It's Mavi and they have really good food. We will have cappuccino now. We also had our dinner here yesterday. It's a really cool place. You should definitely come and explore it. You want to say anything? Just feeling sad that the trip is ending soon. But overall it was really fun. It was a good day today as well. A bit too sunny, to be honest. Wherever we have been to,
all these cafes and restaurants have been amazing. The food is good, the price is pretty decent, at par with any like of the bigger cities, right? So we don't have any complaint on that end. But yeah, all in all, it's a good day. Can you tell something more about your experience of dolphin boat? Oh, the dolphin boat was a good one. I enjoyed it. Got to see the red coral, which is a bit rare, and a lot of fishes and marine life. So, out of the total 40 minutes, I would say 15 to 20 minutes you will see the corals and the marine life. The remaining 20 minutes is pretty much you come to the upper deck, you click photos, you enjoy the sea and the islands. That's about it. Thank you. Our coffee is here. Yes, we would like.